other dignitaries on the dais, a very good afternoon and very warm welcome to you all. On behalf of South Central Railway, I extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais and each one of you who have gathered on this momentous occasion. It is in fact a blessed moment for all of us to be gathered at this sacred place of Komuraveli to lay the foundation stone for a new halt station. This will immensely benefit the people of this region by providing first-time direct train connectivity from Komuraveli station itself. As you are aware, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had recently dedicated Manorabad Siddipet new railway line and introduced passenger services in this section. This has opened new opportunities of growth with enhanced connectivity to this region. Continuing the importance given by the railways to this region, today marks another significant movement which will lead to provision of a new halt station at this renowned pilgrimage town. This will facilitate direct train connectivity to pilgrim passengers from all over Telangana state. Under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and under the guidance of our Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Indian Railways has been rapidly transforming to meet the aspirations of the new age rail passengers by bringing about perceptible change in rail infrastructure. Several new world-class facilities are being developed so that passengers are offered the best-in-class rail services. The state of Telangana has been a critical part of this transformation by being witness to record infrastructure addition, rapid electrification, transformation of stations as part of station redevelopment, and introduction of new facilities for making the travel experience truly memorable. I am confident that the foundation stone being laid today for the construction of a station building at this important pilgrim town. और अब सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। बल्कि मौका पड़े तो देश के दुश्मनों के बीच अपने बहादुर जवानों का पहुंचाने का भी सबसे सशक्त माध्यम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे आने वाले समय में जब विकास की बात करेंगे, आज तो देवदर्शन की बात रहेगी, लेकिन भविष्य में इंडस्ट्री डलेगी और भी विकास होगा, तो रेल की पटरियों के माध्यम से भविष्य में विकास के दरवाजे खुलेंगे। उसके माध्यम से ये पूरा क्षेत्र एक अलग दौर में जाएगा। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यद्यपि मैं आया दर्शन करने, लेकिन किशन रेड्डी जी ने कहा कि स्टेशन का भी आपने को भूमि पूजन करना है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र अतिशीघ्र यह स्टेशन भव्य बनेगा और बड़ी संख्या में यहाँ यात्री आएंगे, जिसके माध्यम से न केवल ये सौगात मिलेगी बल्कि बड़े पैमाने पर भविष्य के लिए रोजगार, धंधे, आप अपन सब कल्पना कर सकते हैं। आने 2 टेन्योर हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के। एक टेन्योर हुआ उनका 14 से लेकर 19 तक का। उसके पहले का समय हम याद करें कि मोदी जी के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश हमारे से आंख नहीं मिलाते थे। आज की स्थिति क्या हुई है? वो पाकिस्तान जो आंख दिखाता था, आतंकवादी हमले करता था, अब घर में घुस के मारने का हिम्मत अगर किसी में आई तो भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आई है कि हमारे अपने लोग, मैं यादव मित्रों के बीच में जानता हूं कि आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे अलग जोश आता है इस बात का। हम सब जानते कि 5000 साल पहले कौरव पांडव के बीच भगवान कृष्ण ने जो धर्म युद्ध के लेकर के अपना दर्शन दिया था, वो गीता, पवित्र गीता हमको कर्म भी सिखाती है और जीवन जीने का, अपने सम्मान के साथ जीने का, भारतवर्ष की पताका भी फहराती है। भगवान कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट आए, लेकिन प्रत्येक कष्ट में उनने सबसे लड़ना सीखा, डरना नहीं सीखा। हम सबको गर्व है हमारे अतीत के भगवान श्री कृष्ण पर भी। और अयोध्या के अंदर अभी अभी हमको मालूम है 22 जनवरी के दिन, एक बार बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है भगवान राम के मंदिर में प्रवेश करने के 500 साल के बाद ये सौभाग्य मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जहां पर हमारे अपने आराध्य सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं,
गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जितने दक्षिण भारत में भगवानों पे लोग नाम रखते हैं, इतने तो उत्तर भारत में भी नहीं रखते हैं। आपकी अपनी जो इंटीग्रिटी है, आपकी हमारी जो आत्मीयता है, वो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को लेके चलने वाली ही विशेषता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संस्कृति कभी किसी को अपमानित करने वाली संस्कृति नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सबका भला करने वाले लोग हैं, जो मानव संस्कृति का झंडा लेके जाते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया में मनुष्यता के नाते से जाने जाते हैं। लेकिन काल के प्रवाह में हमारा अंदर का पौरुष जगाने के लिए वर्तमान का नेतृत्व जो आया है, अब तो अयोध्या तो छोड़ो, अरब के अंदर भी भगवान के मंदिर का लोकार्पण हुआ कि नहीं हुआ आनंद के साथ। ये हमारा वर्तमान का समय है कि हमारे अपनी संस्कृति पे गर्व करने के जो जो उपक्रम है, वो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में विकास के साथ अपनी संस्कृति पे गर्व करते करते, और दुनिया तो अब आप देख रहे होंगे, दुनिया